Now it is lecture number 2 about the conduction system of the heart. तो पहले लेक्चर में हमने देखा कि what conduction system is and what is its main role. Conduction system का क्या main role है और हमने देखे components of the conduction system जो heart का conduction system है उसके कौन से components है. तो आज हम पहला वाला component लेते हैं conduction system का, that is SA node. Now what SA node is? SA node मैंने पहली first lecture में बताया था. SA node is a specialized combination. It is a specialized structure formed by smaller modified or the specialized cardiac cells. ठीक है, तो उसको ये SA node बन जाता है. ये एक नोडल टिश्यू इसको हम कहते हैं. तो SA node सिंपली इस SA node को हम कैथ एंड फ्लैंक नोड भी कहते हैं. कैथ एंड फ्लैंक नोड, SA node is also called as a कैथ एंड फ्लैंक नोड. अब ये कैथ एंड फ्लैंक नोड हम क्यों इसको कहते हैं? बिकॉज दीज आर द डिस्कवरर्स, दीज वर द पैथोलॉजिस्ट जिन्होंने ये डिस्कवरी की किसकी? SA नोड की, साइनो आर्ट्रियल नोड की. तो मैंने एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा है SA नोड. तो अगर आप इसको वर्ड वाइज लिखेंगे तो इट बिकम्स साइनो आर्ट्रियल नोड. तो ये साइनो आर्ट्रियल नोड इट इज आल्सो कॉल्ड एज द कैथ एंड फ्लैंक नोड. और इस कैथ एंड फ्लैंक नोड या SA नोड जो है इट इज आल्सो कॉल्ड एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट. इसको कहते हैं हम पेस मेकर. इट्स कॉल्ड एज द पेस मेकर ऑफ हार्ट. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंडक्शन में, पेस मेकर ऑफ हार्ट. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, pacemaker of the heart. That means SA node is called as the pacemaker of the heart. And now what pacemaker means? Pacemaker means to generate impulse. जो impulse creator होता है, the impulse or the electric signal creator or the electric impulse generator, that is called as the pacemaker. Now this SA node, ये जो SA node होता है, ये SA node इसकी लोकेशन, पहले मैं इसकी शेप बताऊंगा. ये बेसिकली होता है, इट इज जस्ट लाइक एज अ बनाना. इट इज जस्ट लाइक एज बनाना. स्मॉल होता है बट जस्ट लाइक एज बनाना. इट इज जस्ट लाइक एज बनाना. तो बनाना की शेप का है, होता है ये बनाना शेप. तो इसकी शेप बनाना जैसी होती है. और अगर मैं इसके डायमेंशंस बोल दूं तो लेंथ इसकी, ये लॉन्ग कितना होता है? 15 मिलीमीटर्स. और ये थिक होता है 1 mm थिक है ये. और 15 mm ये लॉन्ग होता है. और एटलीस्ट 3 mm ये वाइड होता है. These are the dimensions of the SA node. ये dimensions है SA node की. ठीक है. Now where this SA node is located, where this bunch of specialized smaller or modified group of cells which form the SA node, where this is located. तो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, I will roughly draw here a diagram of the heart. I'm not good at diagrams, but I will try. We'll simply here to have now let it be the heart. Let it heart. Let it be the heart. And SA node, this is right atrium. This is the left atrium. Auricles, these are the auricles, right and left. And this is septum. This is ventricular septum.
or you can simply call it as ventricular barrier between the right ventricle and left ventricle. There's a barrier called as the ventricular septum, and also there is a barrier between the auricles, between right and left auricles. There's a barrier between the right and left auricle. So that this barrier is called as, ये जो barrier यहाँ पर है, it is called as auricular septum, interauricular septum. Between the auricles there is a barrier, muscular barrier is there, called as the interauricular septum. Interauricular septum. Now you have to remember this. This is the superior vena cava. ये superior vena cava है, और आपको पता है ये superior vena cava, what is the function or what is the role played by the superior vena cava? superior vena cava का इतना ही रोल है, ये deoxygenated blood लाती है from the body parts. It carries the deoxygenated blood into the right auricle. It is a simple function of the superior vena cava. और superior vena cava के यहाँ पर, where it enters into the right auricle, just below the superior vena cava entrance into the right auricle, but जहाँ पर एंट्रेंस होती है superior vena cava के into the right auricle, उसके थोड़ा सा lateral side में यहाँ पर there is a location, there is a nodal tissue called as SA node. That means SA node की अगर location में बोल दूँ तो SA node की location है, SA node की location simply है below superior vena cava. In the अगर मैं लोकेशन इसकी लिख दूं तो मैं लिखूंगा बिलो सुपीरियर वेना कावा, लेकिन कहां पर? राइट आर्ट्रियम में. राइट आर्ट्रियम की जो मायोकार्डियम वाल है, राइट आर्ट्रियम की जो मायोकार्डियम वाल है, उसी के अंदर बिलो द सुपीरियर वेना कावा, बट लेटरल, बिलो एंड स्लाइटली लेटरल. That means towards the side. तो towards the ये साइड की तरफ होता है जो सुपीरियर वेना कावा है. सुपीरियर वेना कावा जब एंटर होती है राइट ऑरिकल में, तो उसी की एंट्रेंस के साइड में थोड़ा सा वहां पर क्या होता है, एक नोडल टिश्यू होता है कॉल्ड एज द SA नोड. ओके, नाउ ये तो लोकेशन इसकी होगी. तो एक और पॉइंट मैं SA नोड में बोलूंगा यहाँ पर. तो ऐसे नोड को हम जो कहते हैं ऑरिजिन ऑफ हार्ट बीट यहीं से होती है. ऐसे नोड इज द मेन nodal tissue where from that electric impulse or simply the heartbeat gets originated. तो origin of heartbeat यहीं से होता है. origin of heartbeat जो electrical signal से ही होती है ना, contraction और relaxation हार्ट की, that is simply called as the heartbeat. तो वो हार्ट बीट कहाँ से होती है? वो बेसिकली स्टार्ट होती है, इनिशिएट उसको कौन करता है? SA नोड. तो SA नोड जो है एटलीस्ट ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है. आई थिंक ये SA नोड जो है ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है. अगर मैं बात करूं ब्लड सप्लाई की, जो SA नोड तक जो ब्लड सप्लाई पहुंचती है, तो मेनली 50% ब्लड सप्लाई और 55% ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है? From the right coronary artery. From right coronary artery, 50% right coronary artery blood supply करती है to the SA node, while as 45% is by left coronary artery. Basically a branch होती है, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की ब्रांच होती है, that is called as circumflex. ये एक ब्रांच होती है circumflex आर्टरी. सिंपली ये एक ब्रांच होती है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की एक ब्रांच होती है. लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी जो है उसकी एक ब्रांच होती है, कॉर्नरी आर्टरी की लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है उसकी ब्रांच होती है एक, तो जिसको हम सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बोलते हैं.
तो ब्लड सप्लाई यहीं से होता है 45% बाय द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स और एंड द 55% बाय द राइट कॉर्नरी आर्टरी। ये सप्लाई होता है ब्लड किसको, ऐसे नोड को। तो ऐसे नोड जो है, ऐसे नोड में जो बेसिकली जब ऑरिजिन ऑफ हार्ट बीट हम यहीं से कहते हैं कि ऑरिजिन ऑफ हार्ट बीट हो जाती है, तो बेसिकली सारा जो मैकेनिज्म है दैट मीन्स कंडक्शन का, तो वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन वी विल टेक अप द ग्राफ, व्हेन वी विल टेक अप द मैकेनिज्म, वी विल टेक अप द मैकेनिज्म, तो उस मैकेनिज्म में हम स्टार्ट यहीं से करेंगे, ऐसे नोड से। तो ऐसे नोड में ही बेसिकली क्या हो जाती है, डिपोलराइजेशन हो जाती है, इसमें इसमें रिपोलराइजेशन हो जाती है, इसमें पीसमेकर पोटेंशियल वो एक फेज आता है, पेसमेकर पोटेंशियल। और ये चीज़ें जब होती हैं जिसमें कैल्शियम पंप होता है, जिसमें सोडियम पंप होता है, जिसमें पोटेशियम आयन्स का रोल बड़ा है, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं फिर ऐसे नोड में, जब व्हेन वी विल फिनिश all these nodal tissues, after which we will after that we will go to the mechanism.